Hello everyone, so here I am your English educator. Welcome to our today's class from World Student Scope. So today we will continue on the same chapter. In the last chapter what we have read, there was a selfish giant whose garden was really very beautiful, was large and was covered with the snow and the frost. Children who used to play in the garden, but at some time when the giant came back, he prohibited the children from entering into the garden, and he also puts a notice board there where it stated as trespassers will be prosecuted. Trespassers outside who will try to enter into the garden, he or she will be punished without if they enter without the permission of the owner, then they will be punished. So after that what we have read that always winters used to be there and no springs, no summer, no autumns. Although in all around the world there was summers was going on, but in the giant's garden there was still a winters. So he was very sad and he was very depressed, and while he was sitting on the window, he heard some melodious voice, he heard some very sweet music, and what he thought of that this music must be of some king's musicians who are just passing by, but it was of little linnets. And after that he just jumped out of his bed, in just excitement to see what is happening in the garden, because he was having getting some intuitions that might be springs has come. तो उसको ऐसा लग रहा है कि springs आ गए हैं, इसलिए वो बाहर जाता है excitement में. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with the birds and the blossoms. अब ये हम मेन पॉइंट्स हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. मेन पॉइंट्स हैं इसके कि सेलिब्रेट करते हैं रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन वापस आ गए हैं, इट मीन्स जो उसने प्रोहिबिशन लगाई हुई थी वो उसने रिमूव कर दी, कि उसको तो स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था, तो माइट भी उसने कुछ चेंज किया है. तो चिल्ड्रंस जो वो एंटर हो गए हैं गार्डन में, एंड ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स, और ट्रीज ने खुद को किससे कवर कर लिया है? विद बर्ड्स एंड विद ब्लॉसम फ्लावर्स. The giant was delighted to see his friends back. अब जो giant है वो अपने friends को वापस देखकर बहुत खुश है, especially a little boy whom he loved dearly. Now, who is that little boy? We haven't read anything about this little boy earlier. So देखते हैं कौन सा little boy है ये जिसको वो बहुत प्यार करता है. The little boy soon disappeared, only to return much later. अब जो लिटिल बॉय है ये बाद में डिसअपियर भी हो जाता है. सो लेट्स फाइंड आउट. अब जो नेक्स्ट पार्ट है इट विल बी गोना अ वेरी इंटरेस्टिंग. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड विथ फुल कंसंट्रेशन. ओके. ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. नाउ ही सॉ अ वेरी वंडरफुल साइट. दिस इज द साइट एंड दिस इज द व्यू. ये व्यू देख रहे हैं वो और उसको बड़ा अच्छा लग रहा है. मोस्ट वंडरफुल साइट. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन. अब जो छोटा सा होल होता है वॉल में, तो क्या होते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं, दे हैड क्रेप्ट इन मीन्स मूव स्लोली इन ऑर्डर टू बीइंग नोटिस्ड, और इन ऑर्डर टू बीइंग जिसमें वो पकड़े ना जाएं, कि धीरे धीरे जब हम आते हैं. क्रैप्ट इन होता है जब हम छुप के आते हैं ताकि कोई हमें देख ना ले, तो छुप के आना मीन्स क्रैप्टिंग. तो वो जो छोटा सा होल होता है वॉल में, उसकी हेल्प से द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ट इन द गार्डन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और चिल्ड्रंस कहाँ बैठे हैं? चिल्ड्रन कहाँ बैठे हैं? इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं चिल्ड्रंस. अब ये जांट ये जब बाहर आता है, व्हेन ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड and when he came outside to see in the garden that what is there in the garden, then what he found the children are sitting on the branches of the tree. In every tree that he could see there was a little child. तो वो क्या करता है, हर एक जो ट्री उसको दिखता है वहाँ पे कौन होता है? छोटा सा बच्चा बैठा होता है. So
In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad. So glad means so happy, filled with joy. So glad means filled with joy or happy. So जो trees हैं they seem to be very happy. अब वो बहुत खुश लग रहे हैं. To have the children back again that they had covered themselves with blossoms. अब क्या होता है, जो trees हैं वो बड़े खुश लग रहे हैं. They are looking very glad. They are looking so glad after the returning of the children's back that they had covered themselves with blossom, and that's why they have covered themselves with blossom. तो इसलिए उन्होंने खुद को किससे कवर किया हुआ है? विद ब्लूजम. अब वहाँ पे बड़े फ्लावर्स हो गए हैं, खिल गए हैं फ्लावर्स. अब वो सारा जो व्यू है वो बहुत वंडरफुल व्यू है. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स. अब वो क्या कर रहे हैं, जो ट्रीज हैं, जो उनकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, अब दे वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली. अब बड़ा जेंटली अपनी आर्म्स हैं जो उसको वेव कर रहे हैं उन चिल्ड्रंस के हेड के ऊपर. इट मीन्स कि वो बहुत खुश हैं. They are really very happy and they are really very delighted. The birds were flying about and twittering with delight. अब जो birds हो गए, अब ये भी बड़े खुश हैं. They are also very happy with the delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was just a very lovely scene. अब वो क्या देख रहे हैं कि जो flowers हैं अब वो भी ग्रीन ग्रास से ऊपर से देख रहे हैं. मतलब वहाँ पे भी छोटे 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 फ्लावर्स होते हैं, वो भी हो गए. एंड लाफिंग मीन्स कि जो फ्लावर्स हैं बहुत खुश नज़र आ रहे हैं. बड़े अच्छे फ्लावर्स जो हैं वो दिखने को मिल रहे हैं. सो इट वॉज अ लवली सीन, कि बहुत बहुत अच्छा सीन वो उसको दिखता है वहाँ पे. नेक्स्ट, ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. अब एक कॉर्नर में क्या होता है, उसका पूरा जो गार्डन होता है वहाँ पे स्प्रिंग्स आ जाती हैं, लेकिन ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. तो अब ऐसा क्या होता है कि बाकी सब तो स्प्रिंग्स आ गई, लेकिन उस कॉर्नर में क्या है, अभी भी विंटर. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन and in it was standing a little boy. थोड़ा सा दूरी पे होता है वो जो कॉर्नर होता है, एक जब लास्ट का एक जब हमारा एक गार्डन होता है पूरा, तो गार्डन का एक साइड का एक बहुत जब जो लास्ट वाला जो छोटा सा कॉर्नर होता है लास्ट में, वो उस कॉर्नर की बात कर रहे हैं जो फारदेस्ट कॉर्नर होता है गार्डन का. एंड इन इट वॉज अ, कौन होता है वहाँ पे खड़ा, एक छोटा सा लिटिल बॉय होता है, स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. अब वो जो है वो बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही tiny है, बहुत small है, that he couldn't reach up to the branches of the tree. कि वो इतना छोटा है कि जो ट्री की branches हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा. He is unable of the tree and he was wandering all around it crying bitterly. अब वो क्या है, अब इतना टाइनी है, ब्रांचेस पे वो जा नहीं सकता, तो क्या होता है वो रो रहा है बहुत ज़ोर से. एंड ही इज़ लुकिंग ऑल अराउंड, कि लोगों की तरफ देख रहा है, बाकी चिल्ड्रन जो खेल रहे हैं उनकी तरफ देख रहा है कि कोई भी उसको उठा के वहाँ ट्री की ब्रांच पे कोई बिठा दे, तो सो दैट कि वो भी इंजॉय कर पाए. तो वो अकेला रो रहा है. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो. अब जो पुअर ट्री था, जिस ट्री के नीचे वो खड़ा था, वो ट्री अभी भी फ्रोस्ट, अभी भी स्नो से कवर है. नॉर्थर्न विंड वॉज ब्लोइंग एंड रॉरिंग अबव इट. मीन्स एक वो छोटा सा जो कॉर्नर है, एक छोटा सा पार्ट को छोड़ के बाकी सारे गार्डन में क्या आ गया, स्प्रिंग. तो वो जो छोटा सा कॉर्नर होता है उसमें अभी भी विंटर्स हैं, वो अभी भी स्नो से, फ्रोस्ट से एंड नॉर्थ विंड से कवर्ड है. कौन सा ट्री, वेयर दैट बॉय वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पे वो खड़ा था. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. अब जिस ट्री के नीचे वो खड़ा है, तो वो ट्री क्या बोल रहा है कि क्लाइंब अप लिटिल बॉय, कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ. दैट क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ो.
and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब ट्री क्या करता है, उसकी हेल्प करने के लिए अपनी ब्रांचेस वो जितनी लो कर सकता था, मतलब जितना ग्राउंड लेवल तक जा सकता था उसको उठाने के लिए वो उतनी उसकी हेल्प करता है, बट ही वॉज टू टाइनी, बट वो बहुत छोटा होता है इसलिए he was unable to climb. And the giant's heart melted as he looked out. जैसे वो इसको देखता है, his heart melts down. अब उसका heart जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाता है ये देखकर, उस व्यू को देखकर. And how selfish I have been. जैसे वो बाहर देख रहा है उसका हार्ट जब वो एकदम मेल्ट हो जाता है उन चिल्ड्रंस को देखकर कि कैसे स्प्रिंग आ गए ड्यू टू दैट चिल्ड्रंस. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड. अब वो क्या बोल रहा है, अब उसको ये रियलाइज हो रहा है कि हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं कितना सेल्फिश था जो मैं चिल्ड्रन को यहाँ पे ग्राउंड गार्डन में खेलने के लिए भी परमिशन नहीं दे रहा था. So now he is thinking about himself that how selfish I have been, कि मैं कितना selfish हो गया था. He said, now I know why the spring would not come here. Will put that poor little boy on the top of the tree. अब वो ये चीज़ भी समझ गया है कि वो जो स्प्रिंग हैं वो उसके गार्डन में क्यों नहीं आते थे. Now he comes to know about the reason why the spring wouldn't come into his garden. We'll put that poor little boy on the top of the tree. अब क्या होता है, अब वो जो जियांट है वो हेल्प कर रहा है किसकी, लिटिल बॉय की, who is very tiny. Now he helped that boy, little boy, on the top of the tree, and then I will knock down the wall. Knock down means go silently without being noticed, कि वो भी अब आराम से जा रहा है कि वो कोई इसको देख ना ले. So then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. अब वो क्या कर रहा है, वो ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी स्लोली जाकर क्या करेगा, फ्रंट डोर को ओपन कर देगा. एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस. अब वो ये सोच रहा है कि मैं इतना गलत था. नाउ ही हैव रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. अब वो क्या करेगा, अब वो ये बोलेगा कि फ्रंट गेट को ओपन कर देगा चिल्ड्रंस के लिए, और सो दैट चिल्ड्रन कैन कम एंड प्ले इन द गार्डन. एंड मोर ओवर he will name that garden as the children can play forever and ever, that they no need to look for any other place instead of giant's garden. तो वो ये सोच रहा है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो उसी के गार्डन में खेलेंगे instead of to look for any other place, कि वो किसी और जगह को देखने की बजाय वहीं पे खेलेंगे. Now they all will play in that garden only. He was really very sorry for what he had done. Now he is feeling very guilty. He has realized his mistake, that for what he had done. अब किसके लिए वो सॉरी है, किसके लिए इतना शर्मिंदा हो रहा है, for what he had done, कि जो उसने किया था. So he crept downstairs and opened the front door quite softly. अब क्या होता है, अब डाउनस्टेयर्स जाता है, क्रैप्ट मीन्स स्लोली जाता है कि कोई उसको नोटिस ना करे, एंड ओपन द फ्रंट गेट क्वाइट सॉफ्टली, और बड़े आराम से, जैसे हम एकदम आराम से नहीं खोलते हैं, तो एक आराम से, बड़े आराम से वो उसने गेट खोल दिया, सो दैट कि उसको कोई भी नोटिस ना कर ले. फ्रंट गेट खोलता है वो, एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ चला जाता है गेट खोलकर, गार्डन में. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रैन अवे. लेकिन जैसे ही जो चिल्ड्रन थे वो उनको देखते हैं, किसको, जियांट को जैसे वो देखते हैं, ऑल द चिल्ड्रन रैन अवे, तो वो सब भाग जाते हैं वहाँ से. जब वो जियांट को देखते ही वो दे वर सो फ्राइटन्ड एंड दे वर सो स्कैर्ड ऑल्सो, so they all ran away.
एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे ही वो चिल्ड्रन चले जाते हैं द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, तो फिर वो जो गार्डन है वो फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, विंटर में। Only the little boy didn't run, for his eyes were so full of tears that he didn't see the giant coming. अब क्या होता है, जब जियांट को देखते हैं सभी स्टूडेंट्स, जब वो फ्रंट डोर को ओपन करके गार्डन में आते हैं जियांट, तो वो स्टूडेंट्स उसको देखकर दे ऑल वर स्कैर्ड ऑफ द जियांट, सब उससे इतना डर जाते हैं दैट दे ऑल रैन अवे, कि वो सब भाग जाते हैं वहाँ से। अब जब वो भाग जाते हैं वहाँ से तो क्या होता है, कौन बच जाता है, ओनली द लिटिल बॉय, वो छोटा सा जो बच्चा होता है वो रुक जाता है वहाँ पे। कैसे, वो जियांट को उसके साइड आते हुए नहीं देखता बिकॉज हिज आइज वॉज फुल ऑफ टीयर्स। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप रो रहे हो और जब रो रहे हैं तो हमें कुछ और समझ नहीं आता और हमें कुछ और नहीं दिखता, इट वॉज एक्चुअली लाइक दैट। तो ये चीज़ भी उसी तरह थी, वो जैसे रो रहा था, हिज आइज वॉज फुल ऑफ टीयर्स, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो उसको वो दिखा ही नहीं कि जियांट वॉज कमिंग, कि जो जियांट है उसकी साइड पे आ रहे थे। नेक्स्ट, सी दिस जियांट, he has hold this boy into his hands, little boy, the tiny boy, and the giant stole up came quietly without being noticed. अब जो जियांट है वो क्या करते हैं, stole up behind him and took him gently in his hands, पीछे से आते हैं। ऐसा होता है कोई आगे से खड़ा, हम पीछे से छुप के आ रहे हैं ताकि उसको पता ना चले कि हम आ रहे हैं, तो वो जैसे आता है तो वो उसको अपने हाथों में विद जेंटल हैंड्स, वो बड़े प्यार से उसको अपने हाथों में उठाता है एंड पुट हिम इनटू द ट्री, तो वो कहाँ रखता है उसको, ट्री पे चढ़ा देता है उसको। देन एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, अब वो क्या होता है, जैसे वो ट्री पे बैठ जाता है तो ट्री भी किससे, वो भी फ्लावर से फिल हो जाता है, मीन्स वो भी खिल जाता है ट्री। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, जैसे वहाँ पे बैठता है वहाँ पे बर्ड्स आते हैं और दे सैंग ऑन इट एंड द ट्री ऑल्सो स्टार्ट टू ब्लूसम एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स। अब जो लिटिल बॉय है अब वो इतना खुश हो जाता है कि उसको ट्री पे बिठा दिया गया है, तो वो बहुत खुश है, खुशी से वो क्या कर रहे हैं, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जियांट्स। अब वो जियांट के पास जाता है एंड ही किस्ड हिम बिकॉज ही वॉज लुकिंग टू सो जेंटल टू हिम, वो छोटे लिटिल बेबी को बड़े जेंटली उसने उठाया हुआ था और उसको वहाँ पे बिठा दिया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, एंड द अदर चिल्ड्रन, अब जब बाकी चिल्ड्रन थे जो कि पहले वहाँ से भाग गए थे, and the other children when they saw that the giant was not wicked any longer, जब उनको ये पता चलता है कि giant is no wicked any longer or the giant is no rude any longer, no strict any longer, then came running back and with them came the spring। तो फिर क्या होता है, पहले वो जो स्प्रिंग होते हैं, अर्लियर दे कन्वर्टेड इनटू विंटर्स, वो पहले विंटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब चिल्ड्रन वापस आते हैं, जब वो देखते हैं कि जो जियांट है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, र्यूड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दे ऑल केम इनटू द गार्डन, वो सब गार्डन में आ जाते हैं एंड उसके साथ ही कौन आ जाता है, स्प्रिंग भी आ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट इट्स योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जियांट। अब इसके बाद क्या होता है, जो जियांट होते हैं वो क्या बोलते हैं चिल्ड्रन को कि नाउ इट्स योर गार्डन। पहले वो क्या बोलते थे, माई गार्डन इज ओनली माई गार्डन, पहले वो यही कहते थे कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है, बट अब वो क्या बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन नाउ दिस इज योर गार्डन, यू कैन प्ले इन दिस गार्डन। And he took a great axe and knocked down the wall, and when the people were going to the market, अब क्या होता है, अब वो जो दीवार है वो हटा देता है, तो फिर क्या होता है, जब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, what they noticed at 12 o'clock, अब 12 बजे का टाइम होता है दोपहर का,
तो वो क्या नोटिस करते हैं? दे फाउंड द जियांट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। अब वो क्या देखते हैं कि जो जियांट है, जियांट इज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, जो जियांट है वो उन्हीं चिल्ड्रन के साथ खेल रहा है और उनका जो व्यू होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इतना अच्छा उन्होंने ब्यूटीफुल गार्डन कभी नहीं देखा होता जहाँ पे वो जियांट भी खेल रहे हैं और अलॉन्ग विद चिल्ड्रन। All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye। अब वो क्या करते थे? सारा दिन खेलते थे, आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक वो खेलते थे, और इवनिंग में they all say goodbye to giant। अब सारे जब जाने के टाइम उनको गुड बाय बोलकर भी जाते थे। But where is your little companion? He said। अब जो जियांट है, नाउ ही इज आस्किंग फ्रॉम अदर चिल्ड्रन दैट वेयर इज योर कंपेनियन, कि तुम्हारा जो कंपेनियन है, जो तुम्हारे साथ था, वो कहाँ है? द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, द जियांट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। तो उसने जियांट जो होता है, बिकॉज द लिटिल बॉय हैड किस्ड हिम, इसलिए वो जो जियांट होता है वो बोलता है, उनसे पूछ रहा है चिल्ड्रन से कि द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, जिस बॉय को मैंने ट्री पे चढ़ाया था, तो वो बॉय कहाँ पे है? वेयर इज योर कंपेनियन? वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन, ही हैज गॉन अवे, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो। अब वो क्या बोल रहे हैं चिल्ड्रन? दैट दे डोंट नो अबाउट दैट लिटिल बॉय, कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। He has gone away, तो शायद वो चला गया है। तो बोल रहे हैं, अब जियांट क्या बोल रहे हैं? You must tell him to be sure and come tomorrow। अब जियांट उसको बोल रहे हैं कि अब तुम उसको बोलना कि वो कल आएंगे, कि उसको बोलो कि कल वो यहाँ पे आए एंड प्ले इन दिस गार्डन। अब जियांट क्या चाहते हैं कि वो जो लिटिल बॉय है वो उसके गार्डन में आकर दोबारा से खेले। So you must tell him to be sure and come together, come tomorrow, said the giant, but the children said that they did not know where he lived। अब जो जियांट थे उन्होंने तो बोल दिया कि उसको बता देना, उसको इन्फॉर्म कर देना to come tomorrow, but the children replied, अब चिल्ड्रन ने क्या रिप्लाई किया? that they didn't know where he lived, कि अब चिल्ड्रन जो हैं उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे रहता है। अब क्योंकि वो चिल्ड्रन को पता नहीं है वो कहाँ पे रहता है, इसलिए वो उनको कहाँ से ढूंढ कर लाएगा। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जियांट फेल्ट वेरी सैड। अब वो जो चिल्ड्रन है वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी भी उसको पहले नहीं देखा है, उसको पहले कभी भी उन्होंने नोटिस नहीं किया, एंड दे डोंट नो इवन कि वो कहाँ पे रहता है। और ये जब वो बोल के चले जाते हैं, दैट मेक्स द जियांट वेरी सैड, तो वो बड़ा सैड हो जाता है, बड़ा सैड फील करने स्टार्ट कर देता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जियांट। अब क्या होता था? हर आफ्टरनून, हर दोपहर वो क्या करते थे? जब उनका स्कूल ओवर हो जाता था तो जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे? गार्डन में आकर खेलते थे। दे केम टू द गार्डन एंड प्लेड विद द जियांट, तो जियांट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जियांट लव वॉज नेवर सीन अगेन। बट वो जो छोटा सा लिटिल बॉय था जिसको जियांट बहुत प्यार करते थे, तो जो इनका बहुत चहीता था, बड़ा प्यारा था, टू हुम ही लव्ड वेरी मच, तो ही हैड नेवर सीन हिम, तो उन्होंने उसको कभी भी नहीं देखा दोबारा। ही हैड नेवर सीन हिम अगेन, तो दोबारा उसने उसको कभी भी नहीं देखा। बट द जियांट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। अर्लियर he was very rude, he was very strict, but now he is very kind to all the children। अब वो सभी चिल्ड्रन के साथ बड़ा ही काइंड है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। Yet he longed for his little friend and often spoke of
him, how I would like to see him, he used to say. अब क्या होता है कि इनमें उन्होंने दोनों चीज़ों को कंपेयर कर दिया कि जो जियांट है वो दो ही इज़ वेरी काइंड, वेरी गुड टू द अदर चिल्ड्रन, बट he often thinks about that little boy to whom he loved, and he often ask and he often think about that little boy. और वो हमेशा यही कहता है कि मैं उसको कब मिलूँगा, मुझे कैसे मिलेगा वो, मैं कब देखूँगा उसको, लिटिल बॉय को. Years went by and the giant grew very old and feeble. अब क्या होता है, सालों साल निकल जाते हैं, जो जियांट होता है अब वो बहुत ओल्ड हो गया. ओल्ड मीन्स अब उसकी बहुत एज हो गई है, तो बहुत ओल्ड एज हो गए हैं, प्लस फीबल. फीबल मीन्स वीक. अब वो ओल्ड भी हो गए हैं और थोड़े कमज़ोर भी हो गए, थोड़े वीक हो गए हैं. He couldn't play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. अब क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं, अब जो जियांट है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, so he can't play any more. तो अब वो और ज़्यादा नहीं खेल सकते हैं. तो क्या होता है, अब वो अपनी आर्म चेयर पे बैठे रहते हैं, एंड ही यूज्ड टू वॉच ऑल द चिल्ड्रंस हु आर प्लेइंग एंड हु आर एडमायरिंग द गार्डन. जो उनके गार्डन को बड़ा एडमायर करते हैं, जिनको जियांट का गार्डन बड़ा ही अच्छा लगता है, वहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लगता है. तो अब जो जियांट हैं वो क्योंकि बहुत ओल्ड हो गए हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए वो आराम से चेयर पे बैठ के उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे अपनी गेम्स को खेलते हैं. सी, इस तरह से वो अपनी आर्मचेयर पे बैठे हुए हैं, एंड दे लुकिंग ऑल टू ऑल द चिल्ड्रंस दोज हु आर प्लेइंग इन द गार्डन. आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ही सेड. अब वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. अब वो क्या होता है, उनके गार्डन में स्प्रिंग आ जाता है, तो वो ये सोचता है कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं, बट उन फ्लावर्स में से जो चिल्ड्रंस हैं ये मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे फ्लावर्स हैं. बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. मीन्स जो ट्रीज़ पे जो फ्लावर्स हैं उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छे मेरे ये जो चिल्ड्रंस हैं ये हैं फ्लावर्स. तो ये चिल्ड्रन को यहाँ पे फ्लावर्स बोल रहा है. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग. अब एक मॉर्निंग क्या होता है, अब एक दिन क्या होता है, एक विंटर मॉर्निंग की बात है, वो विंडो से ना बाहर देख रहा था, व्हाइल ही वाज ड्रेसिंग. जैसे वो तैयार हो रहा था तो विंडो से देखता है बाहर को. नो व्हाट ही नोटिस्ड, ही डिडंट हेट द विंटर नाउ. अब क्या होता है कि जैसे वो बाहर देख रहा है व्हाइल ही वाज ड्रेसिंग, अब वो क्या देखता है कि अब वो उसको विंटर को और ज़्यादा नफरत नहीं करता. अब उसको विंटर्स अच्छी लगती हैं, बुरी नहीं लगती. फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग. अब उसको ऐसा लगता है कि जो स्प्रिंग्स हैं वो थोड़ी सी एस्लीप, थोड़ी जो सो रही हैं, एंड जो फ्लावर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, कि सून जो है वो स्प्रिंग सीजन आ जाएगी. थोड़े टाइम है जब फ्लावर्स को थोड़ी रेस्ट चाहिए, फ्लावर्स को थोड़ा रेस्ट चाहिए, और जो ट्रीज़ हैं ये सबको स्प्रिंग सीजन को भी इवन थोड़ी सी रेस्ट चाहिए, वो भी अभी रेस्ट कर सो रहा है. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर. अब सडनली वैसे अपनी आईज को रब करता, हम यूजुअली अपनी आईज को कभी कभी रब कर देते हैं ना. सो ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड. इट सडनली वॉज अ मार्वेलस साइट. और जैसे वो बाहर को देखता है उसको बड़ी अच्छी एक मतलब व्यू दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है उसको बाहर का गार्डन. इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूजम्स. अब क्या होता है, जो फार्देस्ट कॉर्नर होता है, वही जो मैंने बोला था, एक गार्डन होता है, उसको एक साइड का एक जो कॉर्नर होता है फार्देस्ट कॉर्नर, तो वहाँ पे वो क्या देखता है, फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वहाँ पे एक ट्री होता है विच वॉज कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूजम, कि लवली बड़े प्यारे प्यारे वाइट कलर के फ्लावर्स से वो कवर्ड होता है, वो जो ट्री होता है.
इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो गोल्डन कलर की होती हैं। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और जो सिल्वर फ्रूट होता है मतलब ब्रांचेस उसकी गोल्डन हैं, फ्लावर्स उसमें वाइट कलर के हैं, और जो फ्रूट है सिल्वर कलर के जो कि नीचे को ऐसे लटका हुआ है, हंग डाउन फ्रॉम देम। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। What he had seen now, he saw that little boy that whom he had loved very much, he was standing on underneath the tree, उसी ट्री के नीचे वो खड़ा है। कौन? That little boy, वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है। Downstairs ran the giant in great joy, अब जिस लड़के को वो इतनी टाइम से वेट कर रहा था, अब वो उस लड़के को उस ट्री के नीचे देखता है, अब वो सीढ़ियाँ उतर के जाता है, जल्दी से जायंट भागता हुआ जा रहा है इतनी खुशी में, इतनी हैप्पीनेस मीन्स सच अ जॉय। एंड आउट इनटू द गार्डन, अब कहाँ पे जाता है वो? गार्डन में। ही हैसन्ड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, अब वो क्या करता है? वो चाइल्ड के पास चला जाता है, ठीक है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड, और जैसे वो उस चाइल्ड के पास आता है, जो उसका फेस होता है वो रेड हो जाता है। मीन्स रेड क्यों? विद एंगर, गुस्से से। हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड, और वो क्या बोलता है? हु हैथ डेयर टू वाउंड दी, दी मीन्स यू। लिटरेचर में दी किसको बोलते हैं? यू को। कि किसकी इतनी हिम्मत होगी? हु डेयर टू वाउंड यू, अब किसकी इतनी हिम्मत होगी जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, अब क्या होता है? जो उसके पाम्स होते हैं उसमें 2 नेल्स के जो निशान होते हैं। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, उसके जो हाथ हैं, हाथों पे भी उसके 2 नेल्स के निशान हैं। मोर ओवर जो उसके फीट हैं, उसके पैरों पे भी 2 नेल्स के निशान हैं। सो ये उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसे किसकी हिम्मत हो गई। यू कैन सी हु हैथ डेयर टू वाउंड दी, अब वो यही पूछ रहा है कि किसकी इतनी हिम्मत होगी जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, अब वो क्या बोल रहा है कि मुझे अभी के अभी बताओ, मैं अपनी तलवार उठाऊंगा, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, तलवार को उठाऊंगा और उसको मार दूंगा। एंड आई विल स्ले हिम मीन्स, स्ले मीन्स किल, आई विल किल हिम विद माई स्वॉर्ड, कि मैं अपनी स्वॉर्ड, अपनी तलवार से उसको मार दूंगा, मुझे अभी बताओ। ने, ने मीन्स नो, स्ले मीन्स किल एंड ने मीन्स नो। आंसर द चाइल्ड, अब जो छोटा सा चाइल्ड था वो क्या बोल रहा है कि नो, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, अब वो बोल रहा है कि नहीं, ये प्यार के जख्म हैं। दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव। हु आर्ट thou, अब बोल रहा है किसने किया? सेड द जान, एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। तो ऐसे क्या होता है, जैसे वो उससे पूछता है और वो उनको ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किया, दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, तो क्या करते हैं? ही नेल्ट, नेल्ट मीन्स कि घुटनों के भार उनके आगे बैठ जाता है। कौन? जियांट, बिफोर द लिटिल चाइल्ड। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जियांट, अब जो चाइल्ड है वो स्माइल कर रहा है जियांट के आगे। एंड सेड टू हिम, You let me play once in your garden, today you shall come with me to my garden, which is paradise. अब वो क्या बोल रहा है? वो लिटिल बॉय था। Now the little boy is saying कि एक दिन तुमने मुझे खेलने के लिए परमिशन दी थी, तुमने मुझे एक दिन अपने गार्डन में खेलने दिया था। You let me play once in your garden, कि जियांट को बोल रहा है वो कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। Today You shall come with me to my garden, और आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे खेलने के लिए। और उसका गार्डन कौन सा है? Which is paradise. Paradise means heaven, means उसकी जो
टाइम है उसका पूरा हो चुका है और वो बोल रहा है उसको कि अब तुम मेरे साथ चलोगे मेरे गार्डन में विच इज़ अ पैराडाइज। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और उसी आफ्टरनून जब वो चिल्ड्रन वहाँ पे आते हैं गार्डन में खेलने के लिए, व्हाट दे फाउंड द जियांट लाइंग डेड। अब वो क्या देखता है, जो जियांट है वो वहाँ पे ही वॉज लाइंग डेड देयर अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम्स। और जैसे ही यू कैन सी द पिक्चर हेयर, ये देखो ही वॉज लाइंग डेड और उसके ऊपर क्या है, वाइट ब्लूजम्स, सारे वाइट फ्लावर्स पड़े हैं उसके ऊपर। सो ही वॉज लाइंग डेड एंड ही वॉज कवर्ड विद वाइट ब्लूजम्स। ये आपकी स्टोरी थी। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। सी द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज द जियांट सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट। अब जो जियांट था उन्होंने अपनी मोस्ट वंडरफुल साइट कौन सी देखी थी? आंसर, द जियांट सॉ दैट, अब जियांट ने देखा था थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, कि छोटा सा होल था जो वॉल में, उसमें से जो चिल्ड्रन है वो गार्डन में एंटर कर गए। दे वर सिटिंग इन टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, कि वो ट्री के ब्रांचेस पे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, और हर एक ट्री पे एक बच्चा तो बैठा ही हुआ था। एंड द ट्रीज, और क्या देखता है, एंड द ट्रीज वर ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रंस बैक अगेन, और जो ट्रीज होते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं उन चिल्ड्रंस को बैक वापस पाकर। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूजम्स, अब वो जो ट्रीज हैं उन्होंने खुद को भी किससे कवर कर लिया? ब्लूजम से। एंड वर warning their hands gently above the child's hands. The birds were flying and twittering with delight and flowers were laughing. मीन्स जो व्यू था बहुत अच्छा व्यू था, बहुत इंजॉय कर रहे थे सब। What did he realized on seeing it? अब ऐसा देख के उसने क्या रियलाइज किया? He realized it was his own mistake that he stopped children from playing in the garden, but after seeing the beautiful view of garden that was filled with children, the birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब उसको इतना अच्छा जब व्यू दिख रहा होता है, बच्चे खेल रहे हैं, हर एक ट्री पे एक चाइल्ड तो था ही। Moreover, the trees covered themselves with blossoms, birds start singing. तो ऐसा व्यू देखकर उसको बहुत खुद पे गिल्ट आता है। Now he knows the reason why the spring hadn't come into his garden. He was really very sorry for what he had done. तो ऐसा देखकर उसको क्या रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। He realized his own mistake. Why was it still winter in one corner of garden? अब गार्डन के एक कॉर्नर में विंटर क्यों थे? As the children played in the garden, the giant noticed that in one corner of it there was a tree that was still covered with snow and frost. अब जो एक ट्री था, it was still covered with snow and frost. क्यों? When the giant came closer and noticed a small boy was standing in front of it. अब जैसे वहाँ पे आते हैं क्या देखते हैं? वन बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, वो भी बहुत छोटा है। एंड दैट ही कुडंट क्लाइम टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, कि वहाँ पे वो खुद क्लाइम नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है। एज द ट्री रिमेन अनटच्ड बाय द चाइल्ड, विंटर स्टिल प्रिवेल्ड इन दैट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, क्योंकि वो वहाँ पे चढ़ा नहीं होता, उस ट्री को उसने अनटच ही होता है वो ट्री, इसलिए वहाँ पे अभी विंटर्स होते हैं। Describe the first meeting of the little child with the giant. अब फर्स्ट मीटिंग क्या थी उसकी? फर्स्ट मीटिंग उसकी कब थी? जब वो वहाँ पे खड़ा था underneath the tree, और he was very tiny so that he was not able to climb on his own, तो खुद तो वो चढ़ नहीं सकता था। So क्या होता है? The giant gently took him in his arms and put him up onto the tree. Soon the tree blossomed with joy and the birds came to sing on it. The little boy, he stretched his tiny arms around the giant's neck and he kissed him very gently just to express his gratitude towards him, अपना gratitude show करने के लिए।
So our next question is describe their second meeting after a long interval. अब जो उनकी second meeting हुई थी बहुत टाइम के बाद, एक long interval के बाद, वो कैसी थी? So in the first corner of the in the farthest corner of the garden there was a tree that was covered with lovely white blossoms. जब उसने देखा था कि वो जो tree है lovely white blossom से covered है, तो वो क्या देखता है, उसके नीचे कौन खड़ा होता है? There stood the little boy, whom he had loved so dearly and was eagerly waiting for him. तो उसकी वो बहुत देर से वेट कर रहा होता है उस little boy की. The giant quickly ran down the stairs of his house in just a great joy to reach out to the child, ताकि वो child तक बहुत जल्दी से पहुंच सके. So इतनी जल्दी में, इतनी एक्साइटमेंट में, इतनी खुशी में वो भाग कर जाता है उसके पास. But when he noticed the nail imprints on the little boy's hands and feet, but जैसे वो देखता है कि उसके पाम में, उसके फीट में 2 nail imprints है, निशान है, वो क्या देखता है? He got very angry. उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो क्या पूछता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई, who caused him such injury, तो किसने उसको ऐसे इंजरी दी. He said that he would slay the person whoever caused the little one so much pain and injury. मैं उसको मार दूंगा अपनी स्वॉर्ड से जिसने तुम्हें इतना हर्ट करने की कोशिश की, इतना पेन देने की कोशिश की. Hearing this, the child told the giant that these were the wounds of love, कि ये जो मेरी wounds हैं वो किसकी wounds हैं? Wounds of love. The little boy further added that as the giant was kind enough, कि अगर लिटिल बॉय ने क्या कहा आगे उसको, कि जो जियांट है वो बड़ा काइंड था कि उसने जो चिल्ड्रन थे उनको अलाउ कर दिया, दैट ही अलाउ हिम टू प्ले इन हिज गार्डन, ही हैड टू टेक द जियांट अलॉन्ग विद हिम टू हिज गार्डन इन पैराडाइज. तो उसने बोला था कि एक दिन तुमने मुझे खेलने के लिए मौका दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे इन पैराडाइज, इन हेवन. Next, the giant lay dead, all covered with the white blossoms. What does this sentence indicates about the one selfish giant? तो selfish giant के लिए क्या बताता है, क्या indicate कर रहा है? The giant lay dead, all covered with white blossoms. The sentence indicates that giant was blessed to live in paradise after his death. Means कि उसको पैराडाइज में रहने का मौका मिल रहा है आफ्टर डेथ. आफ्टर हिज डेथ एज ही वॉज नो लॉन्गर सेल्फिश एंड क्रूअल. अब वो सेल्फिश नहीं है. एज द स्टोरी वो स्टार्टेड विद द सेल्फिश जियांट, बट एट लास्ट ही बिकम्स सो काइंड, ही बिकम्स सो गुड. सो ही वॉज कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स इन हिज गार्डन एंड द वाइट ब्लॉसम्स इंडिकेट दैट द जियांट हैड अ पीसफुल डेथ. तो वो जो वाइट ब्लॉसम्स थे वो क्या इंडिकेट करते हैं? कि उसकी बड़ी पीसफुल डेथ थी. नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द ग्रुप्स. अ लिटिल child's hand and feet had mark of nails. What does the child remind you of? अब ऐसा ही कोई इंसिडेंट पहले भी हुआ था या ऐसा ही कोई इंसिडेंट सिमिलर है किसी चीज से? वो जो नेल इम्प्रिंट्स थे उसके फीट पे और उसके पाम में. So the remarks of the nails on the child hands reminds us of Jesus Christ. तो हमें किसके रिमाइंड करवाते हैं? जीसस क्राइस्ट का. कैसे? When the giant met the child for the second time, he noticed imprints of nails on the boys. अब जो second time मिला था तो उसने क्या नोटिस किया था कि उसके हाथ में imprints है लिटिल बॉय के पाम पे और उसके फीट पे. This made the giant angry and he cried out loudly कि किसकी इतनी हिम्मत होगी जिसने तुम्हें इतना हर्ट किया. So if we remember the crucifixion of Jesus Christ, अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें, अगर उनके सेक्रीफाइस के बारे में बात करें, it reminds us that there were similar nail imprints on his palm and feet. तो हमें ये रिमाइंड करवाता है कि उनके जो हाथ और उनके पाम और उनके जो फीट थे उन पे भी सेम नेल इम्प्रिंट्स थे. He had sacrificed his life for the sake of humanity and he had also forgiven those who caused him such pain and dishonor. Similarly, the little boy in the story told the giant that
These marks were the sounds of love. जैसे कि जीसस क्राइस्ट के भी सेम ही इम्प्रिंट्स थे, सेम ही निशान थे जैसे वो लिटिल चाइल्ड के थे, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने भी अपनी जो लाइफ थी सेक्रीफाइस की थी ह्यूमैनिटी के लिए, उन्होंने भी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किए थे और उन्होंने भी सबको माफ़ कर दिया था जिन्होंने उनको दर्द दिया था, जिन्होंने उनको दुख पहुंचाया था। तो वैसे ही जो लिटिल चाइल्ड है वो भी बोलता है कि ये प्यार के निशान हैं। Is there something like this garden near where you live? Now this you need to do your own. You can get an idea here, but you need to write it in your own words according to your own experience. Is there something like this garden near where you live? अब आपके घर के पास ऐसा कोई गार्डन है? I don't know. अगर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। Would you like one without the giant perhaps? अब वहाँ पे ऐसा एज्यूम मत करना कि जियांट भी आएगा, नो। एंड वाई, वट वुड यू डू टू कीप इट इन अ गुड शेप? अब अगर आपके घर के पास ऐसा गार्डन है तो कैसा है, आप क्या करते हो उसको एक अच्छा रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए? अगर आपको अच्छा लगता है तो क्यों लगता है? सो हियर यू कैन गेट एन आइडिया। यस, देयर इज अ पार्क, there is a park near my house. The park was huge. The park has huge trees which bear beautiful flowers and fruits on it. There is a jogging track. अब jogging track भी है park में, where people come for the morning strolls and brisk evening walks. There is a swing and a slide in the middle of the park. Park के middle में swing भी है और slide भी है. Where children of neighborhood come and play with each other. जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं neighborhood के वो आते हैं and they used to play with each other. I love gardening and I have planted, अब उस according to me I love gardening and I have planted a few saplings. कुछ saplings हमने लगाई हैं वहाँ पे recently, which I water whenever I go to the garden. जैसे मैं garden में जाती हूँ वैसे उनको water भी करती हूँ जो saplings मैंने लगाए हैं. So I also try to ensure nobody tramps over the plants or grass very unnecessarily. तो उसको क्लीन करने के लिए भी हम बहुत कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करती हूँ कि उसको क्लीन रखा जाए, इधर उधर रैपर्स ना फेंके जाएं। तो जितना हम उसको क्लीन रखेंगे उतना ही हम एक गार्डन को इंजॉय कर पाएंगे। जितना गार्डन क्लीन हो उतना इंजॉयमेंट होती है। सपोज़ कि एक गार्डन है, इतने कुछ रैपर्स पड़े हैं, कहाँ कहाँ वहाँ पे स्टोन्स पड़े हैं, डस्टबिन है लेकिन लोगों ने बाहर पे ही रैपर्स वगैरह फेंके हुए हैं। सो ऐसे गार्डन में हु लाइक्स टू प्ले? आई डोंट लाइक्स टू प्ले। मैं तो नहीं जाना चाहूँगी, इवन मैं खेलना भी नहीं चाहूँगी उस गार्डन में। डू यू लाइक्स टू प्ले इन सच अ गार्डन? सो यू नीड टू टेक सम स्टेप्स टू कीप योर गार्डन क्लीन, टू कीप योर सिटी क्लीन। अब सिटी से पहले क्या आ जाता है हमारा? जहाँ हम खेलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, योर होम, योर गार्डन, जहाँ पे आप खेलने के लिए जाते हो। सो यू नीड टू कीप दैट गार्डन वेरी क्लीन एंड इन अ वेरी गुड शेप। तो उसके लिए आपके कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। Now think it over. Selfless love involves suffering for others. जो सेल्फलेस लव होता है ना, वो सफरिंग्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं फॉर अदर्स। दूसरों के लिए बहुत हमें सफरिंग करनी पड़ती है, बहुत सफ़र करना पड़ता है। समटाइम्स वी डोंट लाइक बट वी हैव टू डू फॉर दैट सेल्फलेस लव। Owning things is human, sharing them is divine. बहुत डिवाइन होता है वो। So thank you. That's all about the story. ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी which I really enjoyed and I hope you also have really enjoyed a lot. So बहुत अच्छी स्टोरी थी. In the next time we will come up with some another story. So that's all for today. Have a nice day. Thank you.